Very good evening to all of you, beta students. Today we are going to start the very first chapter, that is language of chemistry. Okay. Now, earlier, beta, you have studied a few things about this in your eighth grade also. It will be repetition of that, but we are going to study little higher concept also. So first, beta, we are going to study about symbol definition. I'll tell you later on. But earlier, beta, we used to assign element by using certain symbol. Like circle means what? Oxygen. Circle with dot means what? Hydrogen. Okay, then circle with plus sign, then it is sulfur. But this was neglected, and then later on, who was the name of the scientist? Berzelius. What he to said? Yeah. Berzelius. Yes, please come. Vinny, na beta? Take this, beta. Take this and take this. Yeah. Okay. Berzelius suggested. We have just started, beta. Just first way. So for carbon, beta, what I'll use, beta? Carbon C. For sulfur, what I'll use? S. So he told that we have to use the initial letter. But later on, beta, if I write calcium, so calcium also there is C, Na. So will I use only C? No. So if you have already used C, then we use the second letter, Ca. For sulfur, for silicon we use Si. So this is how we started with the symbol. Now every symbol has two words, beta. Avik beta, it has two meaning. One is qualitative and one is quantitative. Qualitative means kaun sa element. Quantitative means how much of that element. So I'm going to explain these two aspects later on. But first we are going to do this. Then beta, this is very important in exam. They will ask this in the fill in the blanks or in the match the column. Okay. Certain elements are derived from their Latin name. So for copper, it is derived from what? Now, what exam question they will ask? What is the Latin name for copper? So what is right? Cuprum. For iron, it is ferrum. This is important. Gold, it is aurum. For silver, it is argentum. Lead is plumbum. And mercury, it is hydrochloride. Now, beta, I want you to write two more here. One is beta tin. Tin is what, beta? Anyone? Tin. Stannum. Stannum. And what is the symbol for it? Sn. Then antimony. Antimony is stubinium. And what is the symbol for that? Sb. Stubinium. Please write this too. If you have textbook, you write. If you don't have, then just write this too. Sternum. Okay, on the first page only, it is there. All right. Avik, beta, are you getting what I'm trying to say? Hello? Yeah. Now, look, beta, I'm going to teach you in detail, when you say valency. So, valency, when you say, beta, most of the students, they generally by heart. Okay. But we are not going to by heart. We are going to study the concept, beta. Valency kaise aata hai. Okay. Antimony and stubnium. Antimony is Sb. Yeah, beta. Have you heard this word antimony? Okay. And tin is stannum. Gold is what, beta? Aurum. What type of question they will ask? What is the Latin name for lead? Plumbum. Okay. What is the Latin name for tin? Stannum. Okay. And the symbol for tin is Sn. And for stubnium it is Sd. Okay. Shall we go ahead, beta? Okay. Chalo. Now, beta, when you say valency, Vinny, beta, do you know any idea about valency? What valency? Have you ever heard about this word valency? What it is? Yeah. Very good, beta. Lost, gain, or yeah, you want to highlight, beta? Very good. Number of electron. It is not always lost or gained. It can be also shared. Okay, right? But why element will lose electron, gain electron, or share? Octet. Okay. But why they need to complete their octet? To become stable. Achha, when you talk about stable means their energy drops. Lower the energy, higher the stability. Now, beta, I'll tell you one thing. But I'll explain you the concept and then we will go to this. Okay. Now look, beta, what I've written here first 20. Avik, beta, I've written first 20 elements. Can you see this first 20 elements? Hello. Right? So these are the first 20 elements, beta. Okay. Hi, hello, live BBC News on Friday night.
ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला एयर काजू केक. I'll give you this mnemonic and all. I'll give you this mnemonic and all. But anyways, beta, how elements are arranged on the basis of atomic number. So I have written the atomic number also here. Can you see this atomic number? 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 20. Now, yeah, Solanki beta, what is this? I have written in this bracket. What is this? One means what it is electronic configuration. What is electronic configuration? Arrangement of electrons around the nucleus in different orbit. Are you getting it? Achha, for lithium it is 2, 1, 2, 2. So now you know na this beta 2, 1, 2, 3, 2, 8, 2, 8, 1 for 11, 2, 8, 2, 2, 8, 3. Right, beta? No need to write this. I'll be sharing this, beta. What you are supposed to write, that I'll tell you, beta. Yeah. No. It's okay. I'll tell you, beta, what to write. Don't worry, okay? Acha, potassium is how much, beta? 2881, 2882. Now, in our life, we have role model. It can be either sports personality or someone, like. So here, beta, who's who? Yeah. Here, okay. Who are role model in periodic table? Everybody wants to become like whoa, them. These are role model. For in our life, we have role model like sports personality or politician or actor, actress, whatever, right? So for element, who is the role model? Helium, neon, and they want to become like that. Nearest noble gas. Now you only tell me, beta, what they will do, beta, here. This fellow, the very first one I'm taking. Okay, sodium, what it will try to become like? It is 281. Who is the nearest noble gas to sodium? It is neon or argon. So it will try to become like neon. So what it will do in order to give one electron? Okay, lithium will also give one. It will try to become like helium. Potassium will also lose one, right? It will try to. So the one who gives one electron. So what will be the valency? Plus one. Right, beta? Okay. Acha, I'll tell you one trick, beta. Any element which has 2 or 3 or less than 3, 3 or in the outermost shell, they will lose. They will. अच्छा ना बेरिलियम क्या करेगा बोलो बच्चे लोग व्हाट बेरिलियम विल डू बेटा 2 2 2 so they will lose na so what will be the valency 2 plus boron how many electrons are there in the outermost orbit 3 so it will be 3 plus now I want you to tell me about this oh my god fluorine it is 2,7 so anyway so it want to become like this so it will gain 1 electron so it will be oxygen will gain how many electron 2 minus very good phosphorus will gain how many so it will be 3 minus or not tell me now carbon can either lose or gain so plus or minus 4 right beta plus 4 or minus 4 any difficulty till here okay Avyukt beta are you getting it hello right so this is how we get the valency this is how we get the valency now hydrogen also beta it can be plus 1 or minus 1 please remember beta hydrogen can be both plus 1 or minus 1 okay so that also I'll teach you any difficulty till here perfectly understood this valency how do we get valency now yeah, look we can also define valency in terms of hydrogen we can also define in terms of Acha, but first of all, we will define in terms of the one who loses electron. They are all are what beta? Metal. They are metal. So if I say what is the valency of a metal? So for sodium, what you will write beta? Sodium loses 1 electron and it become Na1 plus or not? Tell me. Magnesium, what it will do beta? It will lose 2 electron. It will become Mg2 plus. Right? Aluminium, it will lose 3 electrons. So acha. So it is what beta? The one which is positive, we call it as monovalent or univalent, divalent, trivalent. So what is valency of metal? It is the number of electron lost per atom of an element. Per atom of an, the one who gains electron. Gain कौन कर रहा था बोलो बेटा क्लोरीन gain हाँ क्लोरीन वहाँ so how will define valency of non-metal? It is number of electron gain. Number of electron nitrogen will gain 3 electron or not tell me okay right anything which has developed positive charge now anything which develops charge they are known as ion they are known as ion and positive means positive ion are known as which ion cation why they are known as cation
No? Okay. I'll tell you better. The one which are negative. They are the one which are negative. All these are ion or not? Tell me, beta. Ion. But they are known as. Oh. Why anion are known as anion? Okay. Don't worry, beta. We'll understand. No. It's very simple. We do something called as electrolysis. In electrolysis, what we do, beta, we connect two rods to the battery. So the terminal which is connected to the positive part of this is the positive part. Bada line positive, the small line is negative. So positive is, you know what, positive, we have to remember what? We have to remember positive. Positive is your papa. Negative is your R2. Papa, R2. Papa, R2. So P is your positive. Positive or A. A is for anode. It is the raw electrode connected to the positive terminal is known as what, beta? Anode. Cartoon. Cat means cathode. Are you getting it, beta? N means negative. So cathode is which terminal? Negative terminal is what? Your cathode. Now, when I suppose if I do electrolysis, maybe we take container, we put salt into it. Remember, salt, water, aqueous form. Now, suppose if in this there is beta, I have added water and or fused or molten NaCl. तो NaCl में क्या होता है बोलो बेटा? Na is positive and Cl is now tell me बेटा, अभी ये पॉजिटिव है तो इसका नाम क्या है बोलो बेटा? आयन. Cl minus is negative, it is also known as ion. Now during electrolysis, where this positive ion will go, it will go toward negative or it will go toward positive? Negative. तो देखिए नेगेटिव के पास जाएगा और ये किसके पास जाता है? कैथोड के पास जाता है ना. देयरफॉर ये आयन कौन कहां पर गया? कैथोड. इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पोटायन. ये नेगेटिव विल गो वेयर? तो ये आयन था, ये कौन से इलेक्ट्रोड के पास गया? हाँ, इसलिए एनायन. तो देख, एनायंस आर विच नेगेटिवली चार्ज. आर यू गेटिंग इट? बट नाम कैसे आया वो अभी समझा. आयन विच माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड आर एनायन. आयंस विच माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड दे आर ओके. कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज. Are you the data are you getting, bro? Hello. So I'm explaining why, not only just we are piety. Okay, let us go to the next part, beta. Have you all understood earlier? Now look, so this was first I have explained you beta valency in terms of what beta? Metal and non-metal. So metal में how they will ask, bro? Come on. Oh yeah. Periodic table के ऊपर करें. Oh yeah. Look here. Valency I first taught you in terms of what beta? Valency of a metal is nothing but what? Number of electron. So look, why we did now? Potassium loses one, magnesium 2, aluminum 3. Hey, valency of non-metal is what? Number of electrons? Green per atom. Are you getting it, beta? But I told you, beta, valency I can define in terms of hydrogen. In terms of hydrogen. So we'll do that. Hydrogen. In terms of hydrogen. Now you only tell me, beta, we got valency. Hey, sodium का valency कितना था बोलो? 1+ था कि नहीं? So sodium valency is 1+. So if with how many hydrogen it will react with? 1 hydrogen. Okay, magnesium valency is how much beta? 2. So it will react with how many hydrogen? 2 hydrogen. Aluminum valency is how much beta? So it will react with how many hydrogen? Right? Acha. Now tell me, fluorine my valency was what? 1, na? So it will react with how many hydrogen? So we'll write HCl. Oxygen valency is 2 minus. So how many hydrogen it will react with? So therefore we get H2O. Are you getting it? Take the 2H we got or not. Nitrogen valence is how much beta? So with how many hydrogen it will react? Oh, therefore I'll write NH3. Understood this? So let us study the another definition of valency. So valence is nothing but what? Number of hydrogen atom. Are you getting number of hydrogen atom with which an element can combine? Clear? Any difficulty till here? Now, beta, certain element have this out. So this is very important. This will definitely come in exam market important.
variable valency. What is very important? Variable. So first of all, they will ask you define variable valency. Certain element exhibit more than one valency is known as variable valency. Hence, fill in the blank it can come. Certain element exhibit more than one valency. So what is the answer? We'll write variable valency. Now, why these elements of variable valency? So that also, that you'll have to just remember, you won't understand properly at your ninth standard level also. Because we generally assume that electron moves in orbit. ऐसा नहीं होता. Electron moves in orbitals. There is some concept called as SPDF. अभी आपको नहीं समझेगा फिलहाल वो. ठीक है ना बेटा? आपको याद भी नहीं रखना है. Nobody will ask that. But I want you to understand this part very well. अच्छा, वेरिएबल मीन मोर देन वन वैलेंसी. अच्छा, लोअर में मैं क्या लिखूंगा? लोअर होगा तो लोअर में क्या आता है? ओ आता है क्या नहीं? लोअर. हायर में क्या आता है बेटा? आई आता है क्या नहीं? तो whenever lower will be there बेटा, so lower number what ending I'll write us. ओ आता है कि नहीं बोलो बेटा? Higher में what I'm going to write? It. What I'm going to write? Now suppose if I write here Cu1 plus and Cu2 plus, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? Cuprous or cupric. Cupric. Are you getting it? What is another name for this? I can also write it as copper Roman 1. And this will be what beta? Copper Roman 2. Avik beta, are you getting what I'm trying to say? Hello? Yeah, copper. Okay. Now beta, there are many beta. Chalo, I'll write my few words. Fe2 plus and Fe3 plus. What will be the name? Come on, tell me. Yeah, ferrous. Can you see lower में beta? Which is lower? This is 2 is a lower number, na? Ferrous. And this is what? Are you getting it? Okay. I'll give you a few more example beta. Suppose if I write Pb2 plus and Pb4 plus. Lolo beta. Pb is what? Plumbum. So it will be what? Plumbus and plumbing. Beta, or else I can write it as what beta? Lead to Roman में. Lead 2 or lead 4. Huh? This is very important. Lead 2 or lead 4. Are you getting it or not? Tell me. Yes. Suppose if I'm writing this Au1 plus and Au3 plus. Orus and orange. Orange. Are you getting it, beta? Yes. Clear? Any difficulty, clear? Such a. But in exam, this give reason will definitely come. Why certain element exhibit variable value? Now, I'll give you a very simple example, beta. A copper atomic number is 29. Okay, so if I draw this electronic configuration, this you'll have to just remember, beta, because this I can, if you want to understand properly, you'll understand only by SPDF. But then too, you tell me, beta, what is how many electrons will come here? 2, 8, 18 and 1. 29. Na beta, देखना count na 10 and 18, 28 and 1. Acha. Ab, you know, beta, what do we call this last shell? Valence shell or ultimate shell. Right, na beta? Ultimate or valence or outermost or last. Our teacher did do SPDF. But beta, that is not, they are not. But have you understood what is SPDF? No, na? तुम्हें बता रहा बेटा, नहीं समझेगा वो. And that is not required also. Okay? This is ultimate. अच्छा, now what is this shell beta? Second last ना beta. So second last को हम लोग क्या बोलते हैं? Penultimate. Penultimate. Are you getting it or not? Tell me. Yes, sir. ओके, अल्टीमेट और अच्छा, अभी ये कॉपर अगर यहाँ से बेटा, अच्छा वैलेंसी के लिए आई विल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच शेल बेटा? आउटर मोस्ट और नॉट? टेल मी. सो इन दिस केस इफ दिस लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, सो व्हाट विल द वैलेंसी? Cu1 plus. Cu1. बट बेटा यू नो कॉपर, जनरली कॉपर का हम लोग जो भी सॉल्ट पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, तो उसका सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? 2 प्लस. कॉपर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज विच वन बेटा? We have studied now copper chloride, copper sulfate. What is the formula in that? Copper oxide. Generally, copper is what? 2, na? So sometimes in order to attain stability, अगर उसको अगर 2 प्लस बनना है, कॉपर को 2 प्लस बनना है, तो बेटा अभी बाहर के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था? टेल मी. 2 होना चाहिए था. तो अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कहां से लाएंगे? तो समटाइम्स इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, वन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम विच शेल? पेनल्टीमेट टू अल्टीमेट. इसमें जंप करेगा बेटा, ये यहां से यहाँ पे जंप करेगा. तो अब ये कितना हो जाएगा बोल बेटा? 2, 8. ये 18 के बदले कितना हो जाएगा? हाँ. तो नाउ इट व्हाट विल बी द वैलेंसी इन दिस केस बेटा?
Acha. So how we'll write the answer? Sometimes in order to attain stability, what will happen? An element will lose electron not only from ultimate shell but also from penultimate shell. Are you getting it? ये तेरे को याद रखना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? क्लियर है? ओके. अच्छा चलो बेटा. Any difficulty here? This is very important. So I want you to mark this. Avik beta, have you understood this? Hello. Yeah. So now let us go to the next part. Ta-da. Mark this. Give reason. Why certain element exhibit variable valency. So what will write answer for this? Yeah, I'll be giving printed notes separately for each chapter. An atom and an element can sometimes lose more electron than present in the. So from where it is losing? That is from penultimate. Are you getting it? Same thing I've explained for copper. Look, it was 18.1. Now it has become how much beta? 28. So if it loses from here, it will become copper 1 plus. And if it loses this 2, then it will become what? Copper 2 plus. Are you all getting it? Yes, sir. Any difficulty till here? Okay. Now beta, these are the variable valence here. Beta, look here. Plus 1 is lower and this is higher. Mercurous, mercuric. Argentus, argentic. Aurus, auric. Ferrous, ferric. Plumbus, plumbic. Stannous, stannous. Manganous, manganic. Platinus. Very good. Now we go to the next part, beta. Okay. Now I'm going to write you something. Ooh, that is radical. Radical. Now, so far we have studied all single element. Can you see, beta, all these were single or not? Tell me. Yes. Only single, na, beta? Only single element. अरे बाबा AL कौन सा भाई? अरे अकेला this AL is single or not? Tell me. अरे I am not talking about this. What I am talking about? I am talking about the charge balance which we did. Okay. Okay, chill, bro. Now let us go to the next part. Oi. I'm writing here something. H4. Is it single element or you see group? Group है ना भाई, एक नाइट्रोजन है और ग्रुप. ओ माय गॉड. अच्छा ये ग्रुप ऑफ एटम्स है and is it showing any valency? Yes, sir. Oh my god, it is showing plus. So group of atom which behaves as single unit and shows valency is known as a radical. Is known as. In your syllabus, you have only one positive radical. Only positive radical in your syllabus. Only positive radical in your syllabus is which one, beta? This one. Ammonium. What is the name? Ammonium. Only positive radical. Yes, guy. Now I'll tell you how it got 1 plus, beta. बोलो ना बेटा. How it got 1 plus? So it got one hydrogen atom. No, it. Why the charge is 1 plus? Because there's 7 in the last. Yeah, अब you tell me बेटा how yeah tell me. अरे unmute करना भाई, तेरा आवाज नहीं आ रहा. Yeah, tell me. Sir, because the nitrogen in here, it has a -3 valency, but your hydrogen, it has +1 in this reaction. So when you get 4, it becomes +4 against -3. So it comes Perfect, bro, man. Absolutely correct. So, beta, that is what I want to teach you. Look, I am not going to tell you by heart things. We'll understand the concept. How it got 1 plus, I'll tell you. You only will answer now. Look. Hey, एक नाइट्रोजन का कितना था बोलो बेटा? -3. अच्छा, हाइड्रोजन का कितना होता है? टेल मी बेटा. 1 प्लस. बट हमारे पास कितने हाइड्रोजन है रे सांबा? तो एक का +1 तो 4 का प्लस. अब इन दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आएगा? +1. अरे -3 +4. अब समझा ये पूरे पे +1 का ऐसे आता है. राइट बेटा. अच्छा, नाउ आई विल टेल यू बेटा. नाउ यू विल ट्राई बेटा. देव ना बेटा. देव बेटा, लुक हियर, आई हैव रिटन हियर OH. अभी मेरे को बताइए OH पे क्या चार्ज होगा? थोड़ा दिमाग लगा. अच्छा, हम लोग ने इंडिविजुअली पढ़ा है ना. हाँ, क्यों होगा? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? हाँ, एक ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, दोनों को ऐड करो बेटा. हाउ मच विल गेट? Oh, understood beta. Yes, sir. अच्छा, all these are group of atoms, so they are known as what? Radicals. Any difficulty till here? Perfectly understood. Okay. Have you understood the beta how we get the charge? Okay, right? Very good, Avik beta. Chalo. Now beta, we have to do what beta?
compound formation. What do you have to do? Compound formation. But before that, beta, no, I'll tell you something for other radical, and then we have something which ends with 8. So what is the difference between 8 and which ends with ite? It is the truth. No, so add one oxygen, add one, so you'll get 8. 8 से क्या मिलेगा? 8. I'll give you example, बेटा. Suppose बेटा if I'm giving you this NO2 1 minus and NO, इसमें एक O ऐड कर दे बेटा, तो क्या हो जाएगा? NO3 1 minus. Are you getting it? So what will be the name for this? Nitrite, and this will become nitrate. Ten. Clear? Sulfide, and this will become. Are you getting this, beta? Hello, sulfide, and this will become sulfate. Similarly, बेटा भी जगह नहीं है तो मैं अच्छा यहाँ पे लिखूँ क्या बेटा? PO3 3 minus and PO4 3 minus. Come on. ये 3 और यहाँ पे वो 4 है ना? Phosphate, phosphate. Are you getting it, beta? Okay. Suppose beta, I have given you this PPO2 2 minus PPO3 2 minus. So this will be plumbite, and this will be plumbate. Now, beta, I'm going to give you explain. I'll give you all this. Huh? I'm going to give you the marking for all this, beta. Is this clear? Any difficulty till here? फैन बंद करना है बेटा. एसी का टेम्परेचर ये कर दो. बोलो. एसी इज ऑलरेडी 24. तो फैन बंद करने को तेरे को पता चलेगा कौन सा बटन है वहां पर? यहाँ पे नहीं पता चलेगा. कोई बात नहीं, बाद में करते बेटा. एनीवेज, जस्ट कीप इट. Any difficulty till here? Now, beta, I'm going to teach you compound formation. What I'm going to do you? But before that, beta, in first 20 elements, 2 are metalloids, boron and silicon. These 2 are what, beta? Metalloid. In first 20, metalloid means which can act as both metal and. Then in first 20 element, who all are noble gases? So these are noble gases. याद रहेगा बेटा? Yes, sir. Okay, now I have given you worksheet, beta. Look, beta, I'll share you the worksheet. You just see and you try to answer, beta. Okay. Now I'm going to. Have you got beta worksheet? The first worksheet you'll remove, beta. The writing worksheet. This one. This the Persilis is photo ही दिखेगा एक साइंटिस्ट का. Yes. Persilis का फोटो दिखेगा वो वाला. Okay, Persilis. चलो बेटा. Okay. Now we have to do beta compound formation, but before going for compound formation, I'm going to teach you something here. Come here. Okay. As I said, beta, some important name I'm going to tell you that you have to remember, beta. This will underline, beta. Now one more thing, I'm going to give you one trick, beta. Whichever is positive, beta. Positive are what, beta? Please remember, positive के ऊपर आप लिख सकते हो, beta. Positive. Cations तो है वो तो ठीक है, beta. Positive ions are cations and अच्छा चलो यहाँ पे आपको ये तो पता ही है ना, cations. They are known as what? ऐसा यहाँ पे slash और and they are basic also. They are Basic. negative are known as Anions or acidic. anions, and they are what, beta? Okay, now anyone can tell me why they are acidic and why they are basic? Come on. Sir, because Yeah, okay. Yeah. The metals form basic oxide. Yeah, very good. And The non-metals form acidic oxide. okay, Avyakt, what do you want to answer? Tell me. अच्छा, Same, sir. positive जो भी रहता है ना बेटा, I'll tell you बेटा, I'm going to explain. अच्छा, what is an acid बेटा? Anything which is H or not generally? अच्छा, name few acid. hydrochloric. HCl, HNO3, H2, SO4, right? अच्छा बस. इसमें ये Cl क्या था तेरा? माइनस था कि नहीं? Yes. Nitrate is what बेटा? माइनस. Sulfate is also what? Negative ना बेटा? Yes. If I write phosphoric acid, तो ये सब कौन से रेडिकल है अंदर? ये कम ऑन नेगेटिव. एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा पता है क्या? दे विल गिव यू वन सॉल्ट एंड दे विल टेल यू व्हिच वन इज एसिडिक एंड व्हिच वन इज Basic. बेसिक. ओके, अच्छा. सब नाउ वी टेल मी, बेस क्या होता है जिसमें भी OH होता है, राइट बेटा? यू माइट हैव स्टडीड ना. सपोज मैंने लिखा KOH, तो बेस हुआ कि नहीं? बोल. NH4OH बेस हुआ कि नहीं? तो इसमें कौन है ये तेरा पॉजिटिव वाला? NaOH. आर यू गेटिंग इट और नॉट? मी तो दीज ऑल आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को वहां बनाते बेटा
base. They form base. Are you getting अभियुक्त बेटा? Hello. Yeah. Now चलो बेटा. Vinny बेटा. Right? Are you getting dear? Okay. चलो. Now in exam, but what I'm going to ask you, hey, have you written this cation and anion and this basic? टेक्स्ट बुक है ना बेटा? नहीं लाया? हाँ, वहां पे ऊपर ही लिखा, जिसके पास जो लाए वो लोग लिख ले है। ओ भाई लिखना है भाई। बेसिक एंड कटायन के क्या लिखोगे बेटा? पॉजिटिव आयंस वहां पे क्या लिखोगे? कटायन एंड दे आर व्हाट? बेसिक। नाउ इन एग्जाम व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क, दैट आई विल टीच यू। आ रहा है ना बेटा? ठंड लग रही है बेटा दोनों को? मैं फैन बंद कर देता हूँ बेटा, रुक जाओ बेटा। अरे यार ये वायर रहता है ना, बार बार बीच में प्रॉब्लम करता है, इसके लिए बेटा कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बेटा, डोंट वरी। Hey, all of you understood this? Okay. This was very important. So now whichever one I'm going to make you underline, that is very important, na beta? Please. This exam. Only positive radical is which one, beta? ये ऐसा स्टार मार्क करो इन एग्जाम में, दे जनरली आस अमोनियम। फिर यहाँ पे से बेटा ये दो वाले इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मार्क करवा देता हूँ। और यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट है तुम्हारे? ये पूरे अल्यूमिनेट, परमैंगनेट, बाइकार्बोनेट या बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट। ऊपर कौन इंपॉर्टेंट है? ये दो इंपॉर्टेंट है, क्लोरेट एंड हाइपोक्लोराइड। प्लीज अंडरलाइन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, shall we go to the next one? हेलो मिरान बेटा, चलो आ जाते हैं ना। यहां पर कौन इंपॉर्टेंट था? यहाँ पे डाइवेलेंट में लुक, these all are very important। ये पूरा, ये कौन है बोल बेटा? क्रोमेट, dichromate. Chromate is CrO4 2 minus. This is also very important, na? Peroxide. It is O2 2 minus, not O2 minus. 2 oxygen to one. Silicate, zincate, plumbite. All these are very important, ना? पूछते बेटा, they are very important। और यहाँ पे ये मार्क कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ये सब। ये बाय हार्ट होना चाहिए मैन, बाय हार्ट होना चाहिए। Now we go to the next part. Come on। And in this lower one, which are very important, these two are very important. One is nitride and carbide. Carbide. Bide 4 minus। ओके, एक रहा बेटा, मैं इसका खाली है ना ये फैन बंद करके आता हूँ बेटा। Yeah, I gave you the worksheet to all of you, know, बेटा। Hello। What's up? चलो बेटा, अभी आ गए ना सब लोग। अभी मैं तुमको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज दे, ये बेटा मैं आपको चार्ट देने वाला हूँ। दिस इज द चार्ट व्हिच यू विल कीप, you know, you complete this, I'll teach you how to complete this, and then you have to stick it at your home, and every day you refer this। ये बाद में साइड में रहो। It is very very important। How to use this I'll teach you बेटा, don't worry। But first what you are going to do, चलो आ जाओ। Hello hello, come। Yeah। तो बॉडी उसमें तो बॉडी तो उसमें है ना, क्या बॉडी वाले उसमें सब आएगा, मैं सब बताता हूँ। वेट, first what I'm going to teach you, just pay attention on that part। Okay, चलो। Now what you have to do बेटा, we are going to do compound formation। Hello students, we are going to do, and I want you to open this worksheet, the writing worksheet। तो बर्जिलिस का फोटो दिख रहा है बेटा? यस हाँ, ये फर्स्ट पेज जाने दो, बाद में करेंगे फर्स्ट पेज। अच्छा, this second page you can directly copy from the notes, okay, from your textbook बेटा, ठीक है ना? अरे बेटा ये सब किया कि नहीं? मेन अभी ये थर्ड पेज भी बेटा, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई शोड यू बेटा।
अरे here what you have to do beta, electronic. Configuration. So how you are going to write electronic configuration here? Right ना बेटा? So this will be 2. हाँ बाद में, हाँ वो बाद में करना, घर पे करना, पहले खाली जो ये बहुत इजी वाला पार्ट है बेटा, 2,3. So what will be the valency here बेटा? When it is 2, valency will be 0. अच्छा हीलियम, I gave you ना बेटा, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर नोबल गैस. In first 20 element boron and silicon are what बेटा? अच्छा ये एक काम करो, बोरॉन और सिलिकॉन के आगे एक्स्ट्रा लिख दो बेटा. बोरॉन इज व्हाट? मेटलॉइड एंड सिलिकॉन लिखेगा ना बेटा? ऐसे यहाँ पे लाइन बना देगा, सिलिकॉन ना बेटा मेटलॉइड. बोरॉन एंड सिलिकॉन बोथ आर मेटलॉइड. ओके, हेलो बेटा. देव बेटा, आर यू गेटिंग इट? देव, तेरा अर्जुन नाम है. तेरे मेरे को तुम लोग दोनों का सरनेम याद है, एक सोलंकी और एक है भंडारी. क्या नाम है क्या तेरा बेटा? पर्व. पर्व. दर्शित. दर्शित. मीरान, देव, और ये तेरा क्या नाम है बेटा? हाँ, रिशांग. रिशांग. रिशांग व्हाट? सुले. और ये तेरा हीरो? युवान. युवान भाटिया. ओके, चलो डन डन डन. Yes, sir. अव्युक्त बेटा, आर यू गेटिंग डियर? हेलो, या वेरी गुड. चलो नाउ बेटा, H. Then who will be the noble gas in this? Noble gas you all know ना बेटा? हाँ, helium, neon and okay. Now we are going to go for compound formation बेटा. Compound formation, how to do this is very important ना बेटा. We are going to do this part. चलो बेटा. Okay, I'll help you out beta. Whenever we do compound formation beta, what happen? Valency of one, the cap of this will become shoe of another, and the cap of this will become shoe of another. Are you getting it? अरे बेटा, इसका कैप इसका जूता बनेगा, इसका कैप इसका. चलो, अमोनियम का कितना होता है? लिखो मेरे साथ. 1 plus, this is 2 minus. 1 plus and 2 minus. So what will happen? Come on. NH4 हाँ, very good. NH4 and this 2 will come here. So it will become whole bracket CO3. Are you getting it? Hello. Hello, hello, hello. ओके, अच्छा बेटा, उससे पहले मैं तुमको एक छोटा सा बता देता. एक वेट. अगर बेटा देखिए, सुनो ना. ये देखो ना, अगर Na होता, Na1 प्लस होता और क्लोरीन 1 माइनस, तो क्या बनता था बोलो बेटा? NaCl. ठीक है ना. अगर बेटा Mg होता और Cl होता तो क्या बन जाता बोलो बेटा? आर यू गेटिंग इट ना बेटा? तो बैलेंस इंटरचेंज. अच्छा बेटा, लेकिन अगर ऐसा होता, Mg2 प्लस होता और O2 माइनस होता तो 2 कैंसिल हो जाएगा. MgO समझ में आ रहा है ना? Al3 प्लस होता और O2 माइनस होता तो वेरी गुड. Al का अगर 3 प्लस होता और नाइट्रोजन इज 3 माइनस, देन व्हाट विल हैपन? वेरी गुड. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, लेकिन बेटा ये याद रखने का, अगर सपोज मैंने आपको ना ऐसा कोई दिया है, सुनो ना, Pb का 4 प्लस है और ऑक्सीजन का 2 माइनस है, तो क्या करोगे? हाँ, तो ऐसा Pb2O4 नहीं, 2 1s are, इफ ये मल्टीपल है तो कट करने का, 2 2s are, so it will become PbO. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. सेम मल्टीपल था ना बेटा, 2 और 2 के टेबल में ये दोनों कैंसिल हो रहा है कि नहीं? तो यू हैव टू ऑलवेज राइट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म. आर यू गेटिंग इट? Yes. ओके, चलो नाउ अभी बेटा, हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट. चलो बेटा, अभी मेरे साथ करोगे. कम ऑन, टेल मी व्हाट इज कैल्शियम इज 2 प्लस. आई एम हेल्पिंग यू विद दिस. वेट एक करके यार. चलो, क्या मिलेगा पहले का? 3 will go here and 2. PO4 bracket 2. Ca3 PO4 Brackets 2. होल ब्रैकेट वाइज. ठीक है, Calcium Calcium is- CO3 bracket 2. हाँ, सबको आ रहा है बच्चे लोग? हेलो, आर यू एबल टू डू दिस? Look, I am starting right from the basics. Huh? Beta, you might have done little bit of this in 8th grade. But again, because this is very important, these are the foundation. If you are not thorough with this, you will not understand chemical equation, balancing and all. Okay? चलो बेटा, पोटेशियम का कितना होता था? 1 प्लस. इसको क्या कहते थे? परमैंगनेट.
हाँ, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? हाँ, याद आ रहा है बेटा? वन वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? कमीनो फोर। ठीक है ना बेटा? क्या बनेगा? कमीनो। ठीक है, क्या एमएनओ फोर बेसिकली पढ़ा है। दिस इज वन प्लस, दिस इज टू माइनस वन। K2CR7. यार क्रिस्टियानो 7, CRO 7। आर यू गेटिंग इट? एनी डिफिकल्ट डिटेल यार? No, sir. अरे ये क्या हो गया? Rather, परफेक्ट। yes. एनी डिफिकल्ट डिटेल यार? No. चलो आगे बढ़े। So इसका आंसर NA2 हाँ, Na is 1 plus Zincate is 2 minus what is NA2 ALN. aluminium is 3 plus this is 3 minus. With 3 will get cancel or not? Tell me. Yes, sir. Now sometimes they will give you name. Okay, so you will be able to do it name when they will give how to do. Look here. Look here. Now they have given you name. So copper is how much, baby? Copper. C. Hey, look here. They are given. हाँ, Roman में they are given ना बेटा. So Roman में तो they are given 2 plus. Sulfate is how much? चलो यार, iron is 3 plus. Chlorine is 1 minus. Now you drew. Sir FeCl3. नहीं, पहला इसका क्या होगा? C1 इसका FeCl. This will be Sir FeCl. right बेटा. Sir, yes. Dun 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 dun. Sir. Dun 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 dun. Dun 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 dun. चलो बेटा, let's go to the next one. Okay, I want you to do this 4 on your own. This is Fe they have written at 2 plus, this is OH 1 minus. Here they have written 1 plus. Nitrate is how much beta? 1 minus and minus. But come on, what you are going to get? पहले का फॉर्मूला क्या होगा? 11 FeOH whole bracket twice. ऐसा रीड करना. AgNO3. CuNO3 whole bracket 2. Very good. Very good. Are you getting it, all of you? Hello. Right, beta. Yes. चलो, now let us go to the next one. Done, sir. These two, चलो बस ये कर देना. PP is 2 plus. Whole bracket 2. So this will be how much beta? Also ये PP. Whole bracket 2. अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा. गेम मीन्स आई नो हाउ टू डू अबाउट दिस. नाउ एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा इस पे, ठीक है ना बेटा? अब एग्जामिनर विल आस्क, अच्छा नाउ दिस बेटा, लुक बेटा, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन. बेटा अभी आप खुद से कर सकते हो कि नहीं? दिस इज मैग्नीशियम एंड व्हाट दे हैव गिवन यार. हाँ, बट बेटा अभी आपको इसमें देखना मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है? 2 है ना बेटा. सो इफ यू वांट यू कैन राइट रोमन 2 हियर इफ यू वांट. एंड व्हाट यू राइट बेटा? हाइड्रोक्साइड. क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोक्साइड ना बेटा. हाँ, ऐसे नहीं, अगर लिखना है तो खाली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख ले बस, खुश हो जाए. ठीक है ना? अभी यहाँ पे क्या लिखा? अमोनियम एंड बाइकार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट का कितना होता था बोलो बेटा? HCO3 और 1 माइनस होता था. अमोनियम भी 1 माइनस, 1 1 कैंसल, तो विल गेट दिस ओनली ना बेटा. तो दिस, अच्छा, दैट्स यू कैन डू लेटर ऑन योर होम. नाउ बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट बेटा, because this you are going to do and you are going to stick it at your home beta. Look here. So इधर HCl है ना? मैं सब बता रहा हूँ, रुक जा बेटा. I have given you this big chart. Show me this chart बेटा. देख बेटा, ये इतना बड़ा चार्ट है बेटा. Here I have given all positive and here I have given all negative. ये बेटा एडवांटेज क्या पता है? क्या ये तुमने ना ये बाय हार्ट कर देना है और ये वाला, तो यू कैन रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज. सर पेंसिल के पेंसिल लिखो, पेंसिल से जिससे अच्छा लगता है लिखो. मैं जो बोल रहा हूँ वही करना, बाकी सब मत करना, आपका टाइम बचेगा बेटा. विल नॉट वेस्ट टाइम.
फर्स्ट बेटा मैं आपको बता देता हूँ, खाली ना मैं जो जो पहले बोल रहा हूँ वो आपको पहले खाली एक वो वाला लिख लो बेटा। देख, हियर हाइड्रोजन इज 1+ एंड दिस इज 1-, सो ये 1 1 कैंसल, डोंट कैंसल इट, सो व्हाट विल गेट बेटा, HCl. खाली मैं जो पहले डाल रहा हूँ वो एक कर देना। ये हाइड्रोजन का और OH का, तो बेटा अभी नहीं नहीं बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ एक्चुअली में बराबर है। अरे दिस इज, अरे 1 1 कैंसल होगा तो HOH ही होता है, बट वी डोंट राइट इट एज, वी राइट इट एज H2O। अरे बेटा ये ऐसे हायर स्टैंडर्ड में हम लोग HOH ही लिखते हैं बेटा, तो बट H कितना है बेटा, 2 है ना, Yes. दिस विल बी ऑल्सो H2O और नॉट, टेल मी बेटा, Yes. क्लियर है? हाँ अभी बेटा, हाँ इसके बाजू वाला क्या होगा, हाइड्रोजन और सल्फर रहेगा तो H2S. H2S। अच्छा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को H3N नहीं करते हम लोग, NH3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, NH3। बस अभी यहाँ पे रुकना है बेटा आपको बस, ठीक है। अच्छा नाउ आई विल टेल यू बेटा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंटायर चार्ट, लुक हियर, आई हैव गिवन यू ऑल योर पॉजिटिव। अच्छा बेटा अभी आप मेरे को बताओ, ये Na और क्लोरीन, सपोज मैंने आपको बोला Na और 1 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaC। अच्छा मैं एग्जाम में बोला व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो वी लुक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज द नेम, Sodium. व्हाट इज द नेम, Chloride. समझ में आ रहा है, ओके या। फिर बेटा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ वही करो, अमोनियम और क्लोराइड का क्या होता है बोलो बेटा, Ammonium chloride. NH4Cl, आर यू गेटिंग इट, ओके वो टेबल में मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। देन बेटा, हाँ अरे अमोनियम का और Cl. अच्छा ऊपर Cl- ही है बेटा। अभी एक एक वाला हम लोग कर देते बेटा, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, CaCl2, बराबर है, मैं वो सारे करवा रहा हूँ बेटा जिसमें चार जा रहा है अलग अलग, बराबर ना बेटा। नहीं अभी डायरेक्टली आप कौन सा करोगे, Fe वाला करो, Fe3 वाला करो, FeC. Fe, Fe2Cl3. अभी झिंगे Fe का 3 है, Cl का 1- है, तो FeCl3 होगा ना बेटा, FeCl3 ना, राइट, ओके चिल ब्रो, चिल्लैक्स। इसका क्या होगा, Pb का 4 वाला है ये, तो PbCl4. PbCl, आर यू गेटिंग इट, मैं 4 वाला बताया बेटा। So gold. अरे बस ना, वो तू कर सकता है बाकी। गोल्ड का क्या होगा बेटा, हाँ गोल्ड में तू कौन सा वाला कर रहा है, अगर 3 वाला करेगा तो AuCl3, बराबर है, अगर Au+1 वाला करता तो AuCl होता। मैंने सारे वेरिएबल वाले भी बता दिए इसमें। अच्छा बेटा इफ यू सी हियर बेटा आई हैव गिवन ऑल द लिस्ट, देख मैंने लिखा भी है, क्यूप्रिक या कॉपर2, फेरस, आर यू गेटिंग, स्टेनस, मर्क्यूरिक, फेरिक, आर यू गेटिंग इट, स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बिक, ऑरिक, ओके। नाउ मैं खाली जो जो कैंसिल करवा रहा हूँ वो आप अभी कैंसिल कर दो बेटा। नहीं नहीं मैं नहीं, और भी मैं बता रहा, ये आप खाली कहाँ कहाँ पे कैंसिल करोगे, ये पूरा कैंसिल कर दोगे बेटा, ये वाला, ये MnO4 का पहला वाला कॉलम कैंसिल कर दो, फर्स्ट कॉलम। ये खाली ऐसा लिख, ठीक है, MnO4 का फर्स्ट कॉलम कैंसिल करना है, खाली फर्स्ट, हाँ HCl वो बराबर है, हाइपोक्लोरस एंड क्लोरिक एसिड, वो जाने दो, वो खाली आपको मैंने ऐसे नाम लिख के दे दिया, ठीक है। अभी बेटा MnO4 में आप क्या कैंसिल करोगे, ये दो लाइन, MnO4 और क्रोमेट का क्या लाइन कैंसिल करोगे, देखो ये पहला कैंसिल कर दिया बेटा, Yes, sir. ओके। अभी ये MnO4 में आप खाली ना बेटा कहां तक लिखोगे, ओनली टिल अमोनियम, ओनली टिल, मैं हाँ अमोनियम में बता देता, अमोनियम तक, अमोनियम तक, फिर ये नीचे वाला आई थिंक कहां तक था, अमोनियम यहां तक था ना बेटा, ये नीचे का आपको नहीं करना है। फिर पांचवा कॉलम का. वही पांचवा तो देखना, 1 2 3 4 5, उसके नीचे के नीचे तक पूरा कैंसिल करना, खाली इसमें परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट, परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट, ऊपर देखना बेटा परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट, वो सब कैंसिल कर दो, वो मतलब नहीं आएगा तुमको सिलेबस में, पूरा नीचे तक, खाली हम परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट का कॉलम, परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट का कॉलम, अमोनियम के बाद सब कैंसिल कर दो। ये पूरा नीचे तक ऐसा दिख रहा है, यहां तक पूरा, ये मर्क्यूरी किधर था, तो मर्क्यूरी खाली ये दो कॉलम में बस, नीचे तक, मर्क्यूरी से सर अमोनियम का. मर्क्यूरी से डाल रहा हूँ ना. हाँ बोलिए. अमोनियम को रखना है,
मर्क्यूरी ऑनवर्ड। अच्छा बेटा, अभी मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग वाला बताऊं क्या, वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो रॉन्ग। अभी मैं ऑक्साइड वाला ले रहा हूँ बेटा, लुक, ये H1+ और ये होगा तो क्या हो जाएगा, H2O। अमोनियम एंड ऑक्साइड लेके तो क्या बनेगा बताओ, NH4OH। NH, वो है ओ भाई। अबे भाई, अमोनियम का कितना है बेटा, 1+, ऑक्साइड का कितना है, NH4 the whole। तो क्या ऐसा होगा, NH4 NH4 होल ट्वाइस। आर यू गेटिंग इट? क्या वो, अरे ओ के साथ कर रहे हैं ना बेटा, अमोनियम एंड ऑक्साइड। जो मैं बोल रहा हूं वही भरो। कैल्शियम और ऑक्साइड का क्या बनेगा बताओ चलो। कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, CO. वेरी गुड। कैल्शियम का कितना था बोल बेटा, 2+, ऑक्साइड इज 2-, तो 2 कैंसल, CaO। समझा क्या? यस सर। मैं जो बोल रहा हूं वही करना है। अभी मजा आएगा तुमको, एक मजेदार लजीज। कौन सा कॉलम है, थर्ड वाला है। हाँ, एक काम करो, ये पीबी का, इस थर्ड वाला है ना बेटा, पीबी ओ, और ये पीबी का क्या बनेगा बताओ। पीबी और ऑक्सीजन था ना पहले, Pb2+ और ऑक्सीजन का क्या बनता था बोल बेटा, 2 कैंसल। और यहाँ पे पीबी का कितना है बोलो बेटा, 4 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 2। हाँ तो 2, तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा तो, लेकिन वो 2 और ये 2 रेड्यूस हो जाएगा, तो पीबी। O2। अब समझ में आया, दिस इज वेरी क्लियर है। यस सर। बस बाकी अभी आप टेबल खुद से कर पाओगे बेटा, ठीक है ना, यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। हाँ, यस सर। So next class आना है. हाँ घर पे जाके कंप्लीट करना है, और ये घर पे चिटकाना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं खाली ऊपर है ना 2-3 इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, वो खाली आप याद रखो। कार्बाइड का कितना होता है, कार्बाइड यहाँ पे 4-, अरे यार सिंबल के साथ है। कार्बाइड का वैलेंस यहाँ पे लिख दो ना, कार्बाइड इज 4-, एक याद रखना बेटा यहाँ पे। फिर एक क्या याद रखोगे बेटा, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का कितना होता है बोलो बेटा, O2 2-, और एक आप यहाँ पे क्या याद रखोगे बेटा, सिलिकेट, सिलिकेट का कितना होता है, SiO3 2-, ठीक है। सिलिकेट, सिल्ली। बाकी तो मैंने सब दिया हुआ, छिंके, प्लम्बाइट नहीं है इसमें, प्लम्बाइट लिख लो यहाँ पे, प्लम्बाइट, ऐसे फॉर योर एम्पर, प्लम्बाइट इज PbO2 2-. What? PbO2 2-, plumbite. Plumbate is PbO3 2-. 8 से 8 में जाते हैं, पता है ना बेटा, ऑक्सीजन निकल। ओके आगे बढ़े। चलो चलो, oh my god, this charger is getting discharged man, हमको पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अभी बेटा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अभी ना बेटा, इसमें तुमको ट्रिक, एग्जामिनर है ना, दे वोंट बी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगी आपको क्वेश्चन। एग्जामिनर व्हाट एग्जामिनर इज गोइंग टू डू, आई टेल यू। हेलो बॉयज, हियर पे अटेंशन, ओके। चलो बेटा, अभी ना मैं एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा, फाइंड वैलेंसी ऑफ एन ए। चलो, ओह माय गॉड, कहाँ थे आप, आंखों में आंसू आ गए मेरे, वेरी गुड, थैंक यू। चलो बेटा, आजा, NO, NO2, One. N2O। चलो बेटा ढूंढो सब लोग, करो करो करो, खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा। क्या 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 क्या, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन इन दिस एंड दिस। नहीं नहीं, करो ना, ढूंढो ना, ए में कितना है वैलेंसी एन का, बी में कितना है, सी में कितना है, और कितना है, वो बोलो ना, ओरली करो, ओरली ओरली। Four one. हाँ,
अच्छा बेटा, कभी भी ऐसा पूछते हैं, मतलब किसका पूछा है, ये जो पूछा है वो उसको अंडरलाइन करो, इसका पूछा है इसमें ऐसा। तो बेटा कभी भी याद रखना, जिसका पूछा है ना तो उसके बाजू वाले का हमको अपने रूल में था, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो बेटा, 2 - अभी देखो मैंने बोला था एक ऑक्सीजन का कितना था बोलो बेटा, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है -2। अच्छा ये पूरा कंपाउंड दिया, ऑलवेज अ कंपाउंड इज टोटल चार्ज इज ऑलवेज व्हाट बेटा, 0। तो -2 को तुम क्या ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा, +2। तो पहला एन का क्या आया बोलो, फर्स्ट वाले में एन का कितना आया, +2। एक ओ का कितना होता है, -2। कितने ओ है रे सांबा, 2। -2 × 2 -4, टोटल 0 होना चाहिए, तो ये इसमें क्या होगा, प्लस। Someone write the charge as well. Yeah, if you write, it's okay. Nobody will give you wrong. But we generally get number, but you can write. Nobody can give you wrong. हाँ, ऑप्शन में अगर चार्ज नहीं लिखा रहेगा तो राइट ओनली 4। ओके, चलो इसका क्या होगा, हाँ इसमें कैसे होगा 1 बेटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना आता है -2, तो यार इट इज -2 और नॉट, टेल मी। तो टोटल 0 होना चाहिए, तो पूरे का मिलके 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या लिखेगा बोल बेटा, +2। लेकिन बेटा ये, हाँ टोटल 0 होना चाहिए ना, ये लेकिन ये +2 कितने नाइट्रोजन का हो गया, फॉर 2 नाइट्रोजन इज +2, सो फॉर 1 नाइट्रोजन इट विल बी हाउ मच, डिवाइड दिस बाय दिस, so +1, so here the balance is +1, are you getting it? चलो one I'll do, when I'll give you, will you do on your own? Yeah. चलो I'll give you one compound, come on, come on, find valency of X in XO2 and its formula, it's ये तो कोई भी हो सकता है। with its with sulfate with hydroxide, तो दे तो दिया है अभी, और तेरे को क्या दूं वेरिएबल, हाँ एक्स कैन भी है, तो अपने को क्या बोला, फाइंड वैलेंसी ऑफ एक्स। अरे बेटा मैंने तुमको कितनी बार बोला है, जो पूछा रहेगा उसको वो अंडरलाइन, तो उसके बाजू वाला तुमको पता होगा, थोड़ा अभी दिमाग लगाओ, चलो सब लोग करो खुद से, कोई बोलेगा नहीं, नोबडी विल से। अबे झिंगे, एक्स का वैलेंसी ढूंढना है, फाइंड वैलेंसी ऑफ एक्स इन दिस, ओके कम ऑन डू इट, एक्स का वैलेंसी क्या होगा बताओ, अपना लॉजिक लगाओ ना, आपको एक्स नहीं पता है तो एक्स के साथ में कौन दिया है बेटा, व्हाट दे आर गिवन, तो एक अभी इसमें सल्फेट है क्या, अबे एक्स में सल्फेट कहाँ है, इसमें एक्स के साथ में कौन है, ऑक्सीजन है ना, हाँ तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, हाँ देख आप है ना, आप हाँ वही मैं बता, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं ये जो वैलेंसी वो इसका है, ऐसा जरूरी नहीं, हाँ एक ऑक्सीजन का कितना है, या वेरी गुड, एक का कितना है -2, तो 2 का कितना होगा, तो -4 को क्या ऐड करेगा तो आंसर 0 आएगा, हाँ अब समझा क्या, क्लियर, ओके। अच्छा अभी सल्फेट के साथ अगर एक्स बनाएगा तो एक्स का कितना है +4, सल्फेट का कितना है 2 इंगे पिंगे, ये कट हो जाएगा कि नहीं, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स SO4 राइट बेटा, अरे 2 1s are and 2 2s are राइट ना बेटा, एक्स विद हाइड्रोक्साइड, एक्स का 2 प्लस है तो हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 1 माइनस, इंगे पिंगे, सो व्हाट विल गेट, एक्स OH किसका, आई एम सो सॉरी ब्रो, या वेरी गुड, आपकी नजर निर्मा सुपर, बेटा मैं भूल गया, यहाँ पर एक्स का 4 था, मैं वो 2 का दिमाग लिखा, आई एम सो सॉरी ब्रो, या सो इट विल बी हाउ मच बेटा, XOH4, वेरी गुड बेटा, अरे 4 था ना भाई, अपन पहले वाले का देख रहे थे, क्लियर है, क्यों पता है क्या बेटा, ये ऑक्सीजन में भी हैव टू बी केयरफुल, अगर बेटा मैंने यहाँ पे अगर HCl2 दिया रहता तो क्या बैलेंस आता था बोलो बेटा, HCl2 हाँ तो HCl2 तो एक्स का कितना होता, हाँ 2 होता, चुपचाप बैठ, मैंने तेरे को ऐसा कंपाउंड दिया ना HCl2, एक क्लोरीन का -1 तो -2, तो एक्स का कितना होता +2, समझा गया, क्लियर है,
ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये ऑक्सीजन में पता है वो कैंसिल हो सकता था, समझ में आ गया कि नहीं? चलो, एनी आर यू गेटिंग अभी बेटा व्हाट आई एम डूइंग? हेलो, या एनी डिफिकल्टी डिलियन? ओ नहीं भाई, देखने का है, हम तुमको दिखाते ना बेबी, वेर इट इज। तुम्हारा ये टेक्स्ट बुक होने को सकती, इसमें पीछे का पेज अगर होगी तो हम तुमको बताती। ओ माय गॉड, तू नहीं होने को सकती मेरे पास इसमें। तुम्हारा टेक्स्ट में पेज नंबर 14 ओपन करो ना, 14 उसमें। 14 में पहला दो क्वेश्चन ही देखो क्या है। 1 4 X here too is ah yeah, and then find the valency of x and then its compound, दिखाई दे रहा है ना? तो यही सब मैंने आपको बताया। फिर वो NO2 और N2O5 भी होगा, देखो। हाँ हाँ, है ना बेटा? नाउ विल बी एबल टू डू इट। तो इसलिए मैं तुमको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, डेंजरस वाले। ओके, नाउ बेटा आई एम, हाँ तो आ जाते हैं ना भाई मेरे, क्या है बोलो? N2O5 दिया है है ना? नहीं, तो क्या बोलता है वो? इधर भी है। Who said that? I didn't say anything. He never said N2। ये मैंने बताया था वही है बेचेंगे, NO2 और N2O। अबे यार ये देखना राजा, आजा इधर क्या, आजा आजा आजा, अरे राजा ये रही है, देखिए मैंने सब बताया था ना, यही है ठीक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? ये बैलेंस वाले क्वेश्चंस विल बी एबल टू डू इट? सर ओके, चलो अभी बड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ बेटा सर्टेन कंपाउंड्स यू नीड टू बाय हार्ट, बेटा सर्टेन कंपाउंड यू नीड टू। Okay, so this is very important. Now, what type of question this? They can come in the MCQ or they can come in the match the column. They can come in match the column. अच्छा, now I'll tell you one thing, बेटा. Whenever we write, अरे वो सब नहीं पूछेगा। अब मैं जरूर बता रहा हूँ, हम लोग है ना HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड यूज नहीं करेंगे बेटा। व्हाट विल कॉल इट एज? ये पूरा बच्चा बच्चा जानता है। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? ये कौन है? ये कौन सा है? अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल एग्जाम में आता है। हाँ हाँ हाँ, ये मैं बता दूँ। ये देखो बेटा, ये एसिडिक एसिड है, इसको बेटा हम लोग और एक नाम है देना, विनेगर। क्या नाम है इसका? विनेगर। हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूला छत्री कू? व्हाट इट इज? CH3COOH, छत्री, छत्री कू, छत्री, CH3 is छत्री कू, कू छत्री कू। Clear? CH3COH, vinegar, acetic acid, right? अच्छा, ये यू यूज एप्पल साइडर विनेगर, हम लोग पीते हैं ना खाने के टाइम पे, वो सब इसमें यूज होता है बेटा। ये चाइनीज बनाते तब भी यूज होता है विनेगर। या छत्रीकू, हाँ छत्रीकू, CH3COH। ओके, या now there are certain element, this you'll remember, huh? Beta, wait, let me write this. Acha, this, when I say rock salt means what is the formula? NaCl. Okay, gypsum, in exam they will ask gypsum, so what is write? Calcium sulfate dot 2H2. Hey, what is the meaning of this dot water molecules? Loose chemical combination. Yeah, they are water molecules which are in loose chemical combination, and they are known as water molecule of crystallization. Water molecule of Crystallization. and because of this molecule, they are responsible for the color. Copper sulfate blue color का होता है ना, because of this. Iron sulfate बेटा green color का होता है ना बेटा, because of this. हाँ हाँ. So this is the water of crystallization. We call it as what बेटा? Water of Crystallization. okay. But in exam में this you will have to buy out. Gypsum formula you will have to buy out. Calcium sulfate water is how many times? 2 times ना. पानी को कहते हैं hydra. 2 times means dihydrate. हाँ, डॉट लिखना चाहिए वो, लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। ब्लू विट्रियोल इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 बार पानी है ना बेटा, पानी को क्या कहते हैं? हाइड्रा। 5 बार है तो पेंटाहाइड्रेट। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ग्रीन विट्रियोल FeSO4 डॉट 7H2। ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10H2O। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। ये फॉर्मूला सब अच्छा आपको है ना, मैं मैथ कॉलम दूंगा एक साइड में ना, ये सब नाम देखा होगा यार, और ये जंबल अप कर दूंगा आगे पीछे, एंड आई विल टेल यू मैच द कॉलम।
Will you be able to do it? Yes, sir. But for that, you'll have to by heart this. For that, you'll have to. By heart. Sometimes in MCQ, I can give you what is the formula of green vitriol, and in option, I can give you these 4 things. 1, 2, 3, 4. तो इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे ग्रीन विट्रियल के लिए? आर यू ऑल गेटिंग इट? समझना नहीं, बाय हार्ट करना है, समझना नहीं, लेकिन बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है ना बेटा? ओके, नाउ अभी ये आप लोग पहली बार कर रहे हो बेटा, ये सब जो आ रहे हैं ना बेटा नीचे, पहले मैं आपको है ना बता देता हूँ ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ओके, hydrocarbons are the organic compound. Hydro means hydrogen, carbon means carbon. So these are the compound which are made up of hydrogen and carbon only. Mark it. These are the compound which are made up of carbon and hydrogen only. Okay, hydrogen and carbon. Now we go to the next part. Now ये आप बोलोगे सर ये क्या है? तो बेटा ये देखो, मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता था बाय हार्ट करो, लेकिन आई डोंट वांट दैट थिंग. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ब्रो. सो आई विल टीच यू विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ब्रो. चलो बेटा है ना, अल्केन एक फैमिली है. अल्केन एक पॉलिटिकल पार्टी है. जैसा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होता है कि नहीं, मैं अगर आपको हाथ का पंजा दिखा होगा तो कांग्रेस, लोटस दिखा होगा तो बीजेपी, वैसे बेटा ना अल्केन में क्या होता है बेटा, ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्ड. ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्ड. इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा अल्केन. अच्छा, अल्क का मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ. व्हेनेवर देयर विल बी वन कार्बन, व्हेनेवर देयर इज, देख आई राइटिंग है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, देन वी यूज दिस प्रीफिक्स अल. ओके, इफ देयर इज वन कार्बन, व्हाट प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मींस नाम के पहले मैं जो लिखता हूं उसको कहते हैं मेथ. क्या बोलते हैं? 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रो. मतलब ये साइंटिस्ट लोग ने निकाला था. ब्यूट 5 होगा तो पेंट, ठीक है ना, पेंट. ये 6 होगा तो हेक्स, आपने को खाली इतना ही याद रखना फर्स्ट 4, ठीक है. अच्छा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा पता है क्या? CnH2n+2. आप लोगों ने पढ़ा रहेगा ना, कह दो ना +2, ऐसा पढ़ा है कि नहीं? कह दो ना -2. अच्छा बेटा, n इज नंबर ऑफ कार्बन. आई विल टेल यू बेटा, n इज नंबर ऑफ कार्बन. अरे दैट मीम यू डोंट सी मीम इन रील. Yes, sir. क्या वो Cn+2 मैं अभी बता रहा हूँ. ये अभी बुक में नहीं दिया है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. ये पूरा फैमिली का मेरे को मेंबर चाहिए ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह पे क्या डालने का? फर्स्ट मेंबर चाहिए तो व्हाट आई विल डू? नहीं, हाँ फर्स्ट मेंबर चाहिए तो व्हाट विल पुट? सब्स्टिट्यूट. आई वांट फर्स्ट मेंबर, आई विल पुट n इज इक्वल टू 1. व्हाट इज माय फार्मूला बेटा? दिस ना. तो C1 2 ही रहेगा. n के जगह पे क्या आएगा? 2 के 1 आएगा ना बेटा. अच्छा, +2 मैथ्स आता है. C into 1 is C. H2 + 2. अच्छा, कितना कार्बन है? एक कार्बन है तो व्हाट आई राइट? मिथ. तो मिथ, मैंने मिथ लिख दिया. फैमिली का नाम क्या है? ए. तो एंडिंग में क्या हो जाएगा? मीथेन. चलो अभी सेकंड मेंबर ढूंढते हैं. सेकंड मेंबर के लिए क्या करोगे? 2. सो पुट हियर C2H2 into 2 C2 4 + 2 6. हम नहीं कार्बन आ रही यार. 2 के लिए क्या प्रीफिक्स डालोगे? अच्छा, एंडिंग में क्या आएगा? ए. चलो बेटा, अगर थर्ड मेंबर के लिए मैं क्या करूंगा? n इज इक्वल टू क्या डालो? 3. तो C3H2 into 3 बराबर है. तो C3 कार्बन मीन्स प्रो. ए. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अच्छा ये बेटा यहाँ पर देखना बेटा, n इज इक्वल टू 4 बेटा लेगी तो क्या मिलेगी? C4 + 2. So what I'm going to C4H10. my God, तो 4 कार्बन मीन्स व्हाट बेटा? बट. एंड एंडिंग में क्या आएगा? ए. ब्यूटे. बटे नहीं, ब्यूटे. अच्छा बेटा, अभी आप ये गौर से देख रहे हैं बेटा, ये आप देखो ये देखो, आपको बाय हार्ट. अच्छा सुनो ना प्लीज, देखो ना.
यहाँ पर बघा ना, इकडे बघा ना। ए इधर आजा, देख अभी ये दिखाई दे रहा है ये नाम, दिखा Yes, sir. कुछ ये दिखाई दे, अरे अरे आजा 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 आजा, ये देख टन 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 टन, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा बेटा, ये कैसे आया, मैंने पूरा लॉजिक बताया कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि आप पहली बार देखो ये क्या हो रहा है। फिर भी और एक शॉर्टकट बताओ, अगर आपको नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो आई टेल यू, खाली मीथेन आप याद रख सकते हो क्या? Yes, please, yes. अच्छा बस बस ये याद रहेगा। अभी मैं तुमको बताऊं आगे का, अगर आपको याद नहीं है, हाँ टेक्स्ट बुक तो मैं कहाँ से बता रहा हूँ बेटा, बोलना। हाँ, अगर तुझे कुछ याद नहीं रहेगा ऐसा मतलब, इसका मैं बता रहा हूँ, तेरे को इतना याद रह सकता है तो मैं बटाटे, रुक जाना। तो इसमें खाली ये जो सी एच, मैं आपको बताऊं क्या, हर एक के अंदर क्या डालना पता है क्या, CH2 ऐड करते जा। इसके अंदर CH2 ऐड कर, क्या मिलेगा आंसर? टेन टेन, तो क्या बन जाएगा? C2H6। फिर इसके अंदर वापस क्या ऐड करेगा? C4H8. CH2 ही ऐड करने का, क्या ऐड करने का? तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? और एक नेक्स्ट मेंबर के लिए क्या गया? तो हर एक मेंबर के अंदर तुम क्या ऐड करेगा? CH2 ऐड करना। बिलीवेबल Yes, sir. वगैरह, अल्कोहल, अल्कोहल और, बरोबर है। इसमें भी बेटा मैं ट्रिक बताऊं क्या, आपको ये फॉर्मूला पता है, ये एक याद रहेगा मिथेनॉल, तो सब में इसमें भी क्या ऐड कर? CH2 ऐड कर। अरे भाई मेरे, इसमें भी CH2 ऐड करना, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, बोलो। देखिए OH ऐसा ही रहेगा, 3 प्लस CC, मिल गया कि नहीं? C3H7. हाँ समझ में आया? अभी बेटा आपको एग्जाम में पूछेंगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ इथेन, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? C2H7. राइट द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, C2H5. राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। NH2. आर यू गेटिंग इट? क्लियर? हाँ तो ये बाय हार्ट करना है, लेकिन फिर भी मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ ना, ट्रिक कैसे याद रखने का। Yes, sir. क्लियर है? मैंने तुमको इतना पूरा लॉजिक के साथ बताया, ये देख रहे, अरे लो, हाँ Vinegar. विनेगर, ये देख बेटा, ये देख, ये देख, ये पूरा लॉजिक के साथ तुमको बताया था पूरा, ये क्यों आता है, एक कार्बन मैथ है तो ऐसा सब पूरा बताते हैं, ठीक है ना? ऐसा मैंने पूरा तुमको डिटेल में बताया है, डिटेल में बताया है, समझा क्या? Yes. अच्छा अब बेटा आप लोगों को क्या का, 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 हाँ अभी बेटा ये देखो, ये मैंने तुम्हारे के देखो यहाँ पे ये पूरा करा दिया, कंपाउंड्स तक यहाँ तक पूरा कराया है। अभी आपको ना मेरे को क्या बताने का है, तुमको मालूम है क्या? ये और बात, ये मैंने तुमको वर्कशीट दिया बेटा, दिख रहा है? Yes. What's up? टन टन ये वाला, इसमें बेटा आपको भी नहीं ये दिख रहा है बेटा, आप ये वाला, अरे राइटिंग वर्कशीट, दो वर्कशीट दिया आज, पहला राइटिंग वाला, ये बर्जिलेस का फोटो दिख रहा है ना, वो वाला वर्कशीट, बर्जिलस का। तो बेटा अभी इसमें आप क्या क्या करोगे यार घर पे, सुन लो। होमवर्क फॉर टुडे, व्हाट ऑल थिंग यू आर गोइंग टू डू, लुक। हाँ कहाँ से भी ये फर्स्ट पेज पूरा कर पाओगे? Yes. फर्स्ट पेज पूरा, ये तो MCQ है बेटा, ये तो चिंदी है बेटा, अभी आप कर सकते हो कि नहीं? चल मैं बता देता हूँ। वैलेंस इज द नंबर ऑफ डैश एटम, कितना, कौन सा एटम होता था? Hydrogen. ए नाइट्रोजन combines with 3 hydrogen atoms, so what is the valency of nitrogen? Three. Magnesium combines to give MgO, the valency of oxygen is 2, so what will be the valency of magnesium? 2. Sodium sulfide, Two. वैलेंसी ऑफ सोडियम है क्या? सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। ये ले लो, सोडियम 1 है ना? वैलेंसी ऑफ कॉपर इन दिस Cu2O, हाँ तो इसमें कितना होगा? नहीं पता है? हट, हट। अच्छा मैं बता, कॉपर का पूछा नहीं पता है तो देख, एक ऑक्सीजन का तो पता है -2 होता है, फिर दोनों का कितना हो जाएगा? +2, +2 डिवाइड बाई 2, One. समझा गया? वैलेंसी, हाँ डी 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 डी, सोडियम का तो 1 होता है ना भाई मेरे, हाँ तो इसमें Fe का पूछा है ना तो 3,
ये इसका होता है, ये इसका होता है, बराबर ना बेटा? Yes, sir. लेड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी ऑफ 2 and 4. वेरी गुड 2 and 4 वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन मैग्नीशियम नाइट्राइड 3. हाँ Ca222 it donates valency, it donates 2 electrons, so what is the valency? Copper and silver exhibit variable valency of 1 plus and 2 plus. A कैसे सीधे what a man C man and what is it? चलो बेटा इधर पे आ जाते। अच्छा ये आप बेटा टेबल पूरा हाँ ये टेक्स्ट बुक से आप लोग ले सकते हो ना पूरा। ये पूरा इसमें क्या करने का मैं बताऊं क्या? ये देख सोडियम का सिंबल क्या है? सोडियम इज Na, वैलेंसी विल बी Na1 प्लस, चिंदी ना बेटा। Yes, sir. ब्रोमीन का Br, यहाँ पे क्या लिखोगे? Br1 माइनस क्या प्लस ये क्या बे? वो बाद में बताऊंगा, वो लेके आना। एक फोल्डर रखना है केमिस्ट्री का, एक थैली बैली बना के रखो, रोज लेके आना है जो भी सामान अंदर डाल के करो, ठीक है ना? ओके फिर ये आप पूरा कर दोगे कि नहीं? Yes, sir. ये मैंने करवा दिया पूरा, करवा दिया. ये करवा दिया। हाँ तो वेरिएबल वैलेंसी तो चिंदी था बेटा, वो तो अच्छा अभी आज ये आज मैंने बताया था कि नहीं कैसे करना है? Yes, sir. पेपर में आज नहीं दिया अच्छा ए वे आर आर क्या? यार क्या आर HCl क्या कौन सा बे? हाँ वो सब बताऊंगा ना, पहले रुकेगा, वो पहले घर से करके आना, फिर आई एम गोइंग टू वेरीफाई। ऐसे केमिकल फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप ये भी हाँ टेक्स्ट हो गया, ये पूरा करना है तेरे को। फिर ये भी हम लोग ने कर दिया है बेटा। अरे कितना चिंदी था, कम ऑन। पोटेशियम और बायसल्फाइड, पोटेशियम इज 1 प्लस, बायसल्फाइड इज SO3 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? KSO3 क्रोमियम एंड क्लोर। अच्छा कैल्शियम एंड नाइट्राइड, कैल्शियम का कितना होता है? 2 प्लस, नाइट्राइड इज 3 माइनस, दिस विल गो हियर, दिस विल गो हियर, सो व्हाट विल गेट? नहीं और भी है, ये देखो पूरा, बस यहाँ तक 28 तक आपको करना, आगे का मैं तुमको अगले क्लास में बताऊंगा। अभियुक्त बेटा हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? टेल मी ब्रो। हेलो ठीक है तो बेटा विल यू डू दिस ऑल? क्लियर है? हाँ ये पूरा चार्ट पूरा कंप्लीट करना है। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको रोज का रिवाइज करना है। चार्ट यू हैव टू सी एवरी डे एट योर होम। तो बाय हार्ट करना. ये अरे बेटा बाहर भी नहीं, इसमें तो खाली देख ये तेरे को बाहर करना है, कैन यू सी दिस? Yes, sir. और खाली ये फिर यहाँ कंपाउंड तो करना। कंपाउंड फॉर्मेशन तो कर देगा। हाँ यहाँ तक करना, यस ओके। Yes, sir. चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे, राइट? ओके बाय अभियुक्त, Bye, sir. बाय बाय।